Good morning, all. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Yeah, good morning. So कौन सा पार्ट में सर वो doubt नया वाला आपको? सर, नया वाला वाला सर, वो आप ठीक है. Yeah, बोलो. कौन सा 27 question में doubt? 27 27. Over here it is given that the value of a plus b, a vector plus b vector dot a vector cross b vector is. So we know that whenever we are going for a addition of two vectors a and b, so we'll get the result is in the plane of a vector and b vector. That means Yes. अगर मान लो ये हमारा a वेक्टर है और ये हमारा b वेक्टर है, अगर हमने a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड कर रहा है मान लो ट्रायंगल लॉ यूज करके या पैरेललोग्राम लॉ यूज करके, so the resultant vector है that is coming in between a and b, or we can say that it will be in the plane of a and b. अगर मान लो ये xy plane में है तो अगर मान लो this is representing our x axis, this is representing y axis, and z axis is perpendicular to the surface. So this will be r will be on xy plane. The same time, if you are going for a vector cross b vector, अगर हमने a vector cross b vector कर रहा है, तो according to right hand thumb rule, the direction of a cross b will be perpendicular to this plane and outward वो z axis में रहेगा. Yes. समझा? So we can say Yes, that sir. ये जो a cross b का direction है और a plus b का direction है, they will be perpendicular to each other. Got it? अभी हम लोग ने उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, so result क्या आएगा? Dot product of two vectors which are Zero. perpendicular, it will be zero, no? Zero. सर पर जो आउटवर्ड वेक्टर आएगा वो a और b से परपेंडिकुलर है ना, रिजल्टेंट वेक्टर से कैसे हो? या a और b से परपेंडिकुलर है तो हम्म। a plus b से भी परपेंडिकुलर हो गया ना, ओके सर. because a plus b is in the plane of a vector and b vector. मतलब अगर मान लो ये हमारा y axis है, ये हमारा x axis है and ये हमारा z axis है, Yes. और इधर एक वेक्टर है a वेक्टर और इधर एक वेक्टर है लेट्स से b वेक्टर, Director. तो ये हमारा मिलेगा r वेक्टर.
तो आर वेक्टर Yes. एक्स वाई प्लेन में है, बट ए क्रॉस बी वेक्टर इजेड एक्सिस में है, तो आर वेक्टर का परपेंडिकुलर हो गया ना ए क्रॉस बी वेक्टर। हाँ सर, समझ गया। समझो। Yes. और बोलो। 29. So question number 13. Yeah, एक मिनट। 29 is that two balls are rolling on a flat, smooth table. One ball has a velocity component of √3j and I, while the other has a component of 2i and 2j. If both starts moving simultaneously from the same point, the angle between their path is. तो find out करना है ये दोनों जो सर्व मतलब पाथ है इसके बीच में एंगल क्या है। So first we can represent these two vectors. Two balls are rolling on a flat table. One ball has a velocity component of √3j and I. So we can just represent what is this √3j. तो √3j मतलब y axis में √3 हो गया, तो हो गया √3j वेक्टर j cap and I cap. तो I cap मतलब a वेक्टर हो गया, तो I cap plus √3j cap. So this will be our resultant vector. So this is nothing but our first vector. Let's say R vector. So two balls rolling on the flat. One ball has a velocity component along this direction. तो ये direction में move कर रहा है, and हम ये भी find out कर सकता है what about the value of angle made by this with respect to horizontal. So अब ले सकते हैं tan theta is equal to opposite side √3 divided by adjacent side 1. So we can write the value of theta will be equal to 60 degree. तो ये angle का value हो गया with respect to horizontal और 60 degree बना रहा है. And other that has a component of 2i and 2j. So second one is having a component of 2i and 2j. So ये हो गया 2i और ये हो गया 2j. Now we can say that this is our resultant vector R vector. So we can find out what about this angle. ये 2 by 2 है तो 1 आएगा, या तो this will be equal to 45 degree. So we can find out ये R1 और R2 में क्या angle है. So R1 is making an angle 45 degree with respect to the horizontal, and R2 is making an angle 60 degree with respect to the horizontal. So दोनों के बीच में angle 15 degree रहेगा ना? Yes, sir. So we have done this similar type of example too, no? Yes. Yeah. और बोलो। 13. Yeah. The resultant of two vectors P and Q is R. If Q is doubled, then the new resultant vector is perpendicular to P. The magnitude of R is. तो find out करना है ये magnitude of R का value क्या है. So in this question it is that the resultant of two vectors P and Q is R. So मान लो if you are going for P vector plus Q vector, we'll get the result as nothing but R vector. So let's say P और Q का बीच में angle theta है. We don't know what about the angle between this P vector and Q vector. Assume that this angle is equal to theta. So we can write जो resultant है वो क्या आएगा, R आएगा. Yes. So over here we can write the relation between them, that is P square plus Q square plus 2PQ cos theta will be equal to nothing but R square. Take it as equation number 1. Now if Q is doubled, then the new resultant vector is perpendicular to P vector. Okay. अभी हमने क्या किया, Q का वैल्यू पहले Q था, अभी हमने इसको 2Q कर दिया. Then the new resultant vector is perpendicular to P vector. So we can say that अभी का जो वैल्यू मतलब पहले मान लो ये P वेक्टर था और उसके साथ हम लोग ने Q वेक्टर ऐड कर रहा था, तो assume that we are getting the resultant vector along this direction. अभी हमने क्या किया, Q का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 times इंक्रीज कर दिया, तो we can just consider that अभी Q का डायमेंशन Q का वैल्यू 2Q हो गया, so that जो resultant vector है it is going to make an angle 90 degree with respect to P vector. समझ में आया? Yes, sir. So we can write what about the value. अभी हमने जो देखो इसके बीच में जो थीटा है उसका तो चेंज नहीं किया है. Alright. So still the angle between them is nothing but theta only. But हमने जो
q का वैल्यू उसको 2q कर दिया था. So we can find out what about the value of r over here. तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी लिख सकता है एक रिलेशन. तो आप ऐसा लिख सकते हैं दैट इज p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट 4q स्क्वायर. या हमने ये दोनों वेक्टर को ऐड कर रहा तो p वेक्टर और 2q वेक्टर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2pq cos theta, that is 4pq cos theta is equal to nothing but r square. Got it? So magnitude, so we can new resultant vector is perpendicular to p vector. So ये जो r है वो अलग रहेगा, ठीक है. ये मान लो इसको r dash मान लो. So we can write this part is equal to nothing but r dash. तो इसको अब लिख सकते हैं nothing but r dash. तब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम लोग r का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p में निकाल सकता है. या ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, सो एज द वैल्यू ऑफ हमको ये भी पता है व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड a वेक्टर, है ना. लाइक सपोज दिस इज आर a वेक्टर, दिस इज आर b वेक्टर एंड लेट्स से दिस इज आर रिजल्टेंट वेक्टर. तो हमने जो बेसिक में डिस्कस किया था, if the resultant vector is making an angle alpha, तो हमने ये tan alpha के लिए इक्वेशन लिखता है. क्या लिखता है? tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b. b sin theta divided by a plus b cos theta. cos theta लिखता है ना. अभी ये जो अल्फा का वैल्यू है, ये सिचुएशन में क्या दिया है? 90 डिग्री दिया है ना. तो tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है. Yes. अगर tan 90 इन्फिनिटी होगा, उसका मतलब क्या है? a plus b cos theta b 0 होगा. cos theta should be equal to 0. That means a should be equal to nothing but b cos theta. Got it? तो a का वैल्यू हम लोग b cos theta लिख सकता है. तो ये क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेगा? p का वैल्यू, ये क्वेश्चन के हिसाब से a का वैल्यू क्या था? a का वैल्यू p था और b का वैल्यू हमने क्या कर दिया? 2q कर दिया था एंड cos theta. तो p का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2q cos theta लिख सकता है. ये समझ में आया क्या लिखा है? और a का जगह पे p लिखा और b का जगह पे 2q लिखा और थीटा में cos थीटा का वैल्यू लिखा. गॉट इट? अभी देखो हमको आंसर किसका टर्म में चाहिए? r का वैल्यू p और q का टर्म में चाहिए. तो आप इसमें वो वैल्यू पुट कर सकता है. गॉट इट? ये जो इक्वेशन के अंदर cos थीटा का जगह पे, तो फ्रॉम दिस इधर से आपको cos थीटा का वैल्यू मिलेगा. देखो cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा? cos थीटा इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 2q आएगा ना. तो आप ये cos थीटा का जगह पे, मतलब इधर का जो cos थीटा का जगह पे आप p डिवाइडेड बाय क्या था? p डिवाइडेड बाय 2q. गॉट इट? सर मेरे को 1090 वाला पार्ट So we मैंने can- 1090 से 1090 0 हो गया, तो फिर वो कैसे आ गया? मतलब tan 90 क्या रहता है बेटा? इन्फिनिटी रहता है ना. सर वो समझा कि वो 0 हो गया, पर वो मतलब बोलो. tan Sir, alpha how did you is, take the angle 90? नहीं वो क्वेश्चन में दिया है इसलिए लिया है. क्वेश्चन में दिया है न्यू रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p. Okay, sir. ओके. तो अभी हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है r वेक्टर, दैट बिकम्स परपेंडिकुलर, मतलब r डैश वेक्टर दैट बिकम्स परपेंडिकुलर टू p हो गया. ऐसा क्वेश्चन में दिया है. तो हो गया p, इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया थीटा और ये हो गया 2q. तो इसलिए हमने लिखा है tan अल्फा, इस अल्फा का वैल्यू 90 हो गया, इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा. तो इसका वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो गया, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन a plus b cos theta is equal to 0. That means a is equal to, we can take it as minus b cos theta. तो a का वैल्यू क्वेश्चन में p था और b का वैल्यू 2q था. सो
हेलो सर। Hello, sir. Are you able to see the screen? Yes, sir. Yeah. No. No, sir. No sir. No, sir. Yeah. No sir. Sir, it is showing tan alpha is equal to that one only. What was previous? Okay. 1 minute. Yeah. So from here we'll get the value of this cos theta. Cos theta का value आएगा minus p divided by 2 theta 2q. अभी हम लोग ये इक्वेशन के अंदर इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा है p square plus q square plus 2pq cos theta. Instead of this cos theta we can write minus p divided by 2q. So this 2q and this 2q get cancel and ये क्या आएगा minus p square आएगा. Minus p square and this p square get cancel. We'll get the value of q square is equal to r square, or we'll get the value of r is equal to q. Got it? Yes, sir. So question number 5. So number 5, it is given that let a vector is a cos theta I cap and a sin theta j cap. A b any vector, another vector b which is normal to a's. Normal means क्या होता है? Perpendicular होता है. So आपको अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो we know that if two vectors are perpendicular that means their dot product should be equal to 0. So देखना है a वेक्टर के साथ कौन सा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करे तो you will get the answer as something but 0. Got it? तो आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके देखो आंसर क्या आएगा ए बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा, वो तो 0 नहीं होगा. तो ऐसा एक एक के साथ आप करके देखना है. तो इसके साथ आप करके देखें तो क्या मिलेगा ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, वो भी 0 नहीं होगा. इसके साथ करके देखो ए बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा आएगा. तो दिस विल गिव दी रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0. गॉट इट? 26. Sir, 33. 26 it is given that at what angle must the two forces x plus y and x minus y act so that the resultant may be x square plus y square under root. तो हम लोगों को इसका थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, रिजल्टेंट वेक्टर भी दिया है. तो कुछ नहीं, नॉर्मल इक्वेशन यूज करना है. मतलब ये दो वेक्टर को ऐड करें तो वी शुड गेट द रिजल्टेंट एज नथिंग बट दिस. That means x plus y, हमने इक्वेशन यूज कर रहा है a square plus b square minus 2ab x plus y into x minus y minus 2ab cos theta should be plus 2ab cos theta should be equal to nothing but under root of this is equal to this. That means इसका भी square कर दो, should be equal to x square plus y square. Got it? So we can find out what about the value of this cos theta over here. तो आप इसको लिख सकते हैं this is nothing but x square plus y square plus 2xy plus
x square plus y square minus 2xy plus 2 into x square minus y square cos theta is equal to x square plus y square. Got it? तो आप देख सकता है this x square and this x square, this y square and this y square can be cancelled. This minus 2xy and this plus 2xy can be get cancelled. So we can write 2x square minus y square into cos theta should be equal to minus of x square plus y square. So we can write the value of cos theta is equal to minus of x square plus y square divided by 2 into x square minus y square. Got it? So इसको ट्रायंगल बना के नहीं कर सकते क्या? ट्रायंगल बना के ऐसे tan थीटा लेके या फिर कोई भी मतलब नहीं. Sir, 31st. Sir, so theta will be cos inverse of this, right? Yeah, cos inverse of this. Will be first option. Sir, 31st question. 31st. Yeah. If E1 and E2 are two unit vectors and theta is angle between them, then sine theta by Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Yes. Hello, sir. yeah, एक minute. So over here E1 and E2 are two unit vectors. That means दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है.
So if you are having two vectors, a vector and a vector, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड एंगल बिटवीन देम थीटा है, तो दो वेक्टर का एडिशन के लिए इक्वेशन हम लोग यूज करता है 2a cos theta divided by 2. तो over here two vectors are having magnitude 1, तो क्या आएगा 2 into 1 into cos theta by 2 divided by 2. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो इसका आंसर मिलेगा cos theta divided by 2. Same as like that, if you are going for subtraction of two vectors, उसके लिए of same magnitude, उसके लिए इक्वेशन क्या था 2a sin theta by 2. by 2. इधर क्या आएगा आंसर 2 into मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 into sin theta by 2 divided by 2. तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो उसका आंसर मिलेगा sin theta by 2. So this term is going to give the value of sin theta by 2. ऐसा आप देख सकते हैं जो सी ऑप्शन है वो क्या दे रहा है 1.1 दिया है, that is 1 into cos theta divided by 2. इसका आंसर आएगा cos theta by 2. एंड डी ऑप्शन में देखता है that is 1 into sin theta divided by 2 into magnitude of this 1 into 1. तो इसका आंसर आएगा sin theta whole divided by 2. Got it? तो ये आएगा cos theta by 2 एंड ये आएगा sin theta by 2. ये आएगा cos theta whole by 2. This is sin theta whole divided by 2. Got it? Yes, sir. Question number 6. The sum of magnitude of two forces acting at a point is 16. If the resultant force is 8 Newton and the direction is perpendicular to smaller force, then the forces are. Sum of magnitude of two forces acting at a point is 16 Newton. मतलब एक फोर्स मान लो F1 है और एक फोर्स मान लो F2. उसका मैग्नीट्यूड का आपको ऐड करें तो 16 मिलेगा. Resultant force is 8 Newton and the direction is perpendicular to the smaller force. ये मान लो resultant force है, that is perpendicular to the smaller force. ये मान लो F1 है, ये F2 है, तो ये 8 है ऐसा. So we can write the relation between them, that is F1 square is equal to 8 square plus F2 square. And हमको ये भी पता है F1 plus F2 is 16. So we can find out the value of F1 and F2. Got it? 10 and 6. Yes. Yeah. Sir. होमवर्क दिया तो वो होमवर्क क्लास के पहले सॉल्व करना है. ऐसा नहीं क्लास में, क्लास जब चलेगा तभी होमवर्क सॉल्व करके डाउट पूछ रहा है. और बोलो सर सेकंड सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2. हेलो सर. yeah. Over here it is given that a particle moves along a curve x square plus 4 is equal to y. The point on the curve at which the y coordinate changes twice as fast as x coordinate is. So y coordinate changes twice as fast as x coordinate. इसका मीनिंग क्या है? चेंज इन वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ y. चेंज इन वैल्यू ऑफ y को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेगा? dy से रिप्रेजेंट करेगा. यस. समझा? तो Yes. at which y coordinate changes twice as fast as x coordinate, मतलब change in value of y is 2 times of change in value of x. 2 That times means of dx. yeah, 2 times of dx. तो ये कौन सा got it. पॉइंट में होगा वो फाइंड आउट करना है. हमारा इक्वेशन क्या है? x square plus 4s equal to y. सो आप इक्वेट कर दो इसको, वो- dy by dx का वैल्यू फाइंड आउट करो. तो फर्स्ट इक्वेशन से आप लिख सकता है the value of dy by dx should be equal to 2. Equal to So we 2. can write, yeah, so this will be equal to 2x. We can write 2x plus 4 is a constant, उसका differentiation हो गया 0 is equal to dy by dx. And dy dx का वैल्यू क्या है? 2 होना चाहिए. That means 2x should be equal to 2. तो x should be equal to 1. तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या है? a मिल जाएगा इसमें से. x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. 5 हो जाए. 4 plus Yes, 1. got it. तो 1, 5 हो गया.
और बोलो. Sir, in the same column, 16th question. Sixteenth one is going to the angle between vectors A and P is. अब देखना है, अभी देखो इसमें जो ऑप्शन कैसे दिया है, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, 90 ऐसा दिया ना, तो Yes. और डिपेंड्स अपॉन एक्स. तो अब देखना है, सपोज हमने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक है. सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर होता है दैट इज इक्वल टू ए बी AB कॉस cos थीटा. theta. और हियर ए का हमने मैग्नीट्यूड लेता है, बी का भी मैग्नीट्यूड लेता है, तो ए वैल्यू क्या हमेशा पॉजिटिव ही लेता है. अभी साइन कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव आने वाला है. तो अगर थीटा का वैल्यू 90 से कम है, इफ थीटा इज लेस देन 90, तो कॉस थीटा का वैल्यू हमको पॉजिटिव आएगा. Yes. अगर थीटा इज इक्वल टू 90, तो इसका वैल्यू हमको 0 मिलेगा. Yes. और थीटा इज 90 से ज्यादा है, देन विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू. Negative. Yes, sir. तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट करके देखना है वेदर वी आर गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और 0. पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल हो गया. नेगेटिव वैल्यू है तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया. 0 हो गया तो 90 डिग्री हो गया. अगर x का टर्म में आ गया तो नॉट डिपेंड्स अपॉन x. ठीक है. सर तो तो पहले वो मतलब x के टर्म्स में आएगा तो D ऑप्शन आना चाहिए, पर उन्होंने B और D दोनों करेक्ट दिया, तो B कैसे करेक्ट है? देखते हैं, पहले इसका डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या मिलेगा. 1 into, तो इसका आंसर आपको आएगा माइनस ऑफ x. ओके. देन नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं j के साथ, तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा. प्लस x का वैल्यू प्लस x प्लस 1, x माइनस x प्लस 1. सो वी कैन राइट, ये दोनों कैंसिल हो गया, x का कैंसिल हो गया ना बेटा, तो नॉट डिपेंड्स अपॉन x आ गया ना. Yes, sir. तो इसका Yes, वैल्यू क्या sir. 3 हो गया. 3 हो गया मतलब वी कैन से दैट इट इज इन पॉजिटिव आ रहा है, तो थीटा का वैल्यू 90 से कम है. इट शुड बी एन एक्यूट एंगल. डी भी दिया है क्या? हाँ सर. नहीं, नॉट डिपेंड्स अपॉन x. व्हाटएवर मे बी द वैल्यू ऑफ x, इट विल कैंसिल ना. सर क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेते तो क्रॉस सर प्रोडक्ट x ले तो minus ले 1 सकता है है उधर कुछ. सर. हाँ, x minus 1 है सर. x minus 1 है. x माइनस 1 है. तो भी 1 नहीं x plus 1 है सर. तो भी 1 है. हाँ ठीक है सर. तो सर इसमें D नहीं आएगा ना? नहीं आएगा. और बोलो. 19th one in the same column. Let A, B, C are 3 unit vectors such that A plus B plus C is also a unit vector. A, B, C are 3 unit vectors such that A plus B plus C is also a unit vector. If pairwise angles between A, B and C are theta 1, theta 2, theta 3, so cos respectively, then cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3 is equal to. तो अभी देखो हम लोग a प्लस बी प्लस सी ऐड करके हमको 1 मिलना चाहिए. वो कब Yes, sir. पॉसिबल होगा, व्हेन दे आर लाइक साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, तभी हो सकता है. रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर. ट्रायंगल में तो 3 ही आएगा ना, नहीं 4 है ना. a प्लस बी प्लस सी ऐड करके 1 मिलना चाहिए. ओके. तो अपने a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऐड करके d मिलना चाहिए. समझा? a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0. 0 तो हम लोग ट्रायंगल में लिखते थे. Yes sir. समझा? तो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3, मतलब मान लो a और b के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है. 90 डिग्री. और b और c के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है. एंड a और c के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है ना. 3 एंगल दिया है. तो ये cos थीटा 1 का वैल्यू हो गया 90, cos थीटा 2 का वैल्यू हो गया 90, थीटा 3 का वैल्यू हो गया 180. तो cos 90 0 हो गया, cos 180 क्या, -1 होगा ना. Got it? Yes, got it. 1 minute sir. Let's.
डन सर. Question number 11. So question number 15. 1-5. Van der Waals equation of gas is P plus A T square by V into V raised to C is equal to RT plus B, where A, B, C and R are constants. If the isotherm is represented by P is equal to A V raised to M minus B V raised to N, where A, B, R depends upon temperature, where A and B R depends on temperature. Then जो M का वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करना है. तो इसमें हम लोग क्या डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर रहा है, नथिंग एल्स. तो हम लोग को पता है कि जो भी टर्म्स है दे वेर सेपरेटेड बाय इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स, दे शुड हैव अ सेम डायमेंशनल फार्मूला. तो फर्स्ट पार्ट में आप लिख सकता है कि P प्लस A T square divided by V into V raised to C is equal to RT plus B. That means आप एक एक का डायमेंशनल फार्मूला इक्वेट करके लिख सकते हैं. That is P का डायमेंशनल फार्मूला और A T square by V का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए, या ये जो RT का डायमेंशनल फार्मूला और B का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए. लाइक दैट इक्वेशन से आप लिख सकते हैं P is equal to P का डायमेंशनल फार्मूला A V raised to M का डायमेंशनल फार्मूला और B V raised to N का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए. एंड वी कैन पुट ये तो P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर, तो हर एक का डायमेंशनल फार्मूला पुट करके हमने M और N का वैल्यू निकाल सकता है. एंड A एंड B डिपेंड्स अपॉन T बोला है, तो आप A का डायमेंशनल फार्मूला T मान सकता है, सॉरी K मान सकता है केल्विन का, एंड इसका भी K मान सकता है. एंड वी कैन फाइंड आउट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ M and N ओवर हियर. Just dimensional lengths and MLT लिख के जो कर रहा है. Sir, बोलो. sir, how did you take A and B as K? A is depends upon temperature. Temperature का dimensional formula हम लोग K लिखता है, Kelvin वाला K लिखता Okay, है. okay. और बोलो डा. So 23. So 15. 1-5. 23. 15. This is going to the calorie is a unit of heat or energy whose value is 4.2 joule, where 1 joule is this much, 1 kilogram meter square second raised to minus 2. If one uses a unit system in which unit of mass, length and time are taken as alpha kilogram, beta meter and gamma seconds respectively, then the value of calorie in this system will be. तो इसको हम लोग जस्ट यूनिट कन्वर्ट करके लिखना है. So unit of calorie of heat whose value is 1 calorie, just given that 1 calorie is equal to 4.2 joules, and 1 joule is 1 kilogram meter square second raised to minus 2. If one use unit system in which unit of mass, length and time are taken as alpha kilogram, तो we can write 1 joule is equal to, अभी जो नया सिस्टम है उसमें एनर्जी का यूनिट ऐसा दिया है, इंस्टेड ऑफ किलोग्राम उसका वैल्यू दिया है अल्फा किलोग्राम, एंड दिस लेंथ इज गिवन एज समथिंग बट बीटा meters, so we can take it as alpha square, alpha kilogram, meter को beta meter लिया है, so we can take it as which is equal to beta square meter square, and gamma second लिया है, तो gamma second raised to minus 2, gamma raised to minus 2 second raised to minus 2 is the unit of energy in new system. Okay, so we can write energy in new system is equal to alpha beta square gamma raised to minus 2 into kilogram meter square gamma raised to minus 2. तो kilogram meter square gamma raised to second raised to minus 2 is nothing but 1 joule. तो energy in new system is alpha beta square gamma raised to minus 2 into 1 joule, and 1 joule is 1 calorie by तो हमको किसका टर्म आंसर लिखना है, then the value of calorie in the system is, okay, calorie का यूनिट फाइंड आउट करना है,
तो जूल का this much joule is nothing but unit of energy in this. So we can write then the value of calorie in new system is. So in new system, जो unit of energy था, that is nothing but 4.2 into 1 joule. 1 joule का value हम लोग ले सकता है energy in new system divided by this, in which the unit of the value of calorie in this system is. So 1 calorie is 4.2 joule, and इसमें length of time is taken as so in this system energy का जो unit है, which we are taking it as alpha square alpha beta square gamma raised to -2 into kilogram this much. So this is nothing but 1 joule over here. तो 1 joule का value क्या रहेगा? This 1 divided by reciprocal of इसका value रहेगा. That is alpha beta square gamma raised to -2. That this much, yeah, this value will be the unit of 1 calorie in new system. Sir, unit को हम लोग reciprocal change क्यों कर रहे हैं. हाँ, रेसिप्रोकल क्यों लिया? इसका न्यू सिस्टम में जो एनर्जी का यूनिट है उसको हमने ई कंसिडर कर रहा है, तो 1 जूल को रिप्लेस कर रहा है. 1 जूल इज ई डिवाइडेड बाय दिस. यस व्हाट बट इसका ई का एक मिनट बट इसमें ई का टर्म में But E is kilogram meter square second raised to -2, right? no ई इज अ यूनिट इन न्यू सिस्टम. उसको शायद 1 लिया होगा, अदरवाइज ई का टर्म में आंसर लिखना चाहिए, बिकॉज ये जो हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो इसका यूनिट है. So E should be they have taken the value of E. मतलब ई को 1 यूनिट लिया होगा. दे माइट बी टेकन ई एज 1 यूनिट. Sir, why? मतलब उसको स्टैंडर्ड यूनिट मतलब 1 ऑफ दैट ऐसा लिया होगा. मतलब 1 जूल ऐसा रहता है ना, 1 जूल 1 वॉट Okay. ऐसा, उसको एक 1 यूनिट लिया होगा. Okay. सो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 4.2 into अल्फा रेज टू -1, बीटा ऊपर आए तो बीटा रेज टू -2, गामा ऊपर गए तो गामा रेज टू +2. Sir, so it is old system by new system, right? यस नहीं, n1 u1 is equal to n2 u2 लेता है. हाँ. बट इसमें जो n का वैल्यू है दे आर मतलब वो ई पे ई का जगह पे आता है. दे माइट बी टेकन जस्ट 1 यूनिट, मतलब Okay. one of this ऐसा. Okay. और बोलो. 23 23 it is given that two vectors a and b are drawn from a common point c is equal to a vector plus b vector. The angle between a and b is. तो ये एक्चुअली हमको बता रहे कि एंगल आप चेंज कर रहा है तो रिजल्टेंट वेक्टर है उसमें क्या डिफरेंस होता है. ओके, एंगल चेंज कर रहा है मतलब assume that we are having a vector, take it as a vector, another vector, take it as nothing but b vector, and angle between them is theta. So if you are adding these two vector, assume that we are going to get the resultant vector as nothing but r vector. उसको जो resultant vector का जो magnitude उसको c दिया था. तो अभी हमने अगर इक्वेशन लिख रहा है a वेक्टर और b वेक्टर का, तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट c स्क्वायर. ये समझ में आया? यस सर. अभी आप देख सकते हैं अगर a प्लस बी cos थीटा का वैल्यू 0 हो गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू c स्क्वायर हो जाएगा. यस. एंड ये 0 कब होता है? व्हेन दिस थीटा इज इक्वल टू 90 90 डिग्री. ठीक है, यस. अभी थीटा का वैल्यू 90 से कम है तो a cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आएगा. तो c स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस समथिंग आएगा.
समझ में आया Yes, कि yes, नहीं? So we can write yes. angle between them beta is अगर 90 है तो क्या मिलेगा? C square is equal to A square plus B square मिलेगा, तो ये गलत है. Got it. If theta is equal to 90 degree, then A square plus B square should be equal to C square. Next one, if theta is greater than 90, theta का वैल्यू 90 से ज्यादा है तो cos theta का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो C square का वैल्यू क्या आएगा? A square plus B square minus something आएगा. Got it. C square का बड़ा हो जाएगा. हाँ, C square का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा. तो we can write greater than 90 degree if C square is less than A square plus B square. And greater than 90 तो ऑलरेडी लिखा है ऐसा. Less than 90 है तो C square का वैल्यू A square plus B square से ज्यादा होगा. If Can you theta explain this is again? less than 90 degree, इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकता है, C square is equal to A square plus B square minus 2AB cos theta. ये समझ में आया? Yes, sir. Yeah. अभी 2AB cos theta का वैल्यू पॉजिटिव है तो C square का वैल्यू A square plus B square से कम आएगा. Yes. अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो C square का वैल्यू A square plus B square से ज्यादा होगा. हाँ. अगर जीरो है तो C square plus B square A square plus B square होगा C square का वैल्यू. Yes, sir. बस. तो थीटा का वैल्यू 90 से कम है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर नेगेटिव वैल्यू आएगा. अगर 90 से ज्यादा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो इधर पॉजिटिव वैल्यू आएगा. जीरो है तो C square is equal to A square plus B square. समझ है कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yeah. और बोलो. $25. 25. If vectors A, B, and C form sides of this, if vectors A, B, and C form sides of AC, CA, and AB respectively of triangle ABC, then तो इधर हम लोग एक ट्रायंगल कंसिडर कर रहा, तो ये इसका साइड्स है, मतलब ऐसा कुछ दिया नहीं, कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समथिंग लाइक दैट. ओके, so we can just consider any type of triangle over here. So मान लो हमने कोई भी एक ट्रायंगल को कंसिडर कर रहा है, something like this. Okay, तो if B vector, if take it as A vector, B vector and C forms sides of a triangle of side take it as BCC and AB respectively, then the triangle ABC, so take it as A, B and C. So BC एक साइड हो गया और CA एक साइड हो गया और AB एक साइड हो गया. ओके, देन अभी हमने A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A कर रहा है. सो whether we are going to get the answer as 0 or not, तो वो डिपेंड करेगा उसके Yes, बीच में sir. एंगल क्या है. ठीक है, तो A डॉट B, अगर मान लो हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसिडर किया है, कोई भी ट्रायंगल आप कंसिडर कर सकते हैं. अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसिडर करेगा तो पूरा ऐड करके 0 तो नहीं होगा, बिकॉज हर एक का बीच में एंगल मतलब 120 रहेगा, तो पूरा ऐड करके नेगेटिव में कुछ वैल्यू आपको मिलेगा. Correct. ये समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट में मुझे लगता है कि इट इज गिवन दैट नथिंग बट A क्रॉस B का वैल्यू B क्रॉस C का वैल्यू और C क्रॉस A का वैल्यू सेम रहेगा. अभी आप A क्रॉस B का वैल्यू देखो, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, A क्रॉस B का वैल्यू विल बी इक्वल टू मतलब अगर आप हमारे पास एक ट्रायंगल है एंड इफ टू वेक्टर्स A and B are the sides of a triangle, then area of triangle will be equal to
2 times of like the magnitude of A cross B. याद है? Yes, याद sir. है सर, यस सर, यस सर, यस A सर। vector and B vector are the sides of a triangle. तो हमने दो टर्म ऐसा लिखा था। अगर हमने A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू नथिंग बट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और ट्रायंगल Yes. कंसीडर करें तो पैरेललोग्राम का एरिया का आधा होता है, तो Half. A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट? Yes. तो वो 2 तो आप times देखो अगर आप A क्रॉस B देखेगा तो भी ये उसका जो मैग्नीट्यूड है ये ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। B क्रॉस A देखो तो भी हमको ये ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। C क्रॉस A देखेगा तो भी वो ट्रायंगल का एरिया मिलेगा ना, मतलब हाँ 2 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल का एरिया मिलेगा ना। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. हाँ. हाँ सर। बिकॉज सेम ही ट्रायंगल का साइड्स है, तो वी कैन से दैट A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड और C क्रॉस A का मैग्नीट्यूड सेम होगा। So can you explain this again? अगर हमारे पास दो वेक्टर है A वेक्टर एंड B वेक्टर, और A वेक्टर और B वेक्टर यूज करके हमने अगर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेगा बाय यूजिंग A वेक्टर एंड B वेक्टर, तो ये जो ट्रायंगल का एरिया है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सर हाफ इंटू आना चाहिए ना, क्योंकि सर ए इंटू बी का तो मतलब पैरेललोग्राम मिलेगा। A क्रॉस हाँ B सर हाफ अपॉन होगा। होगा सर। हाँ सॉरी, हाफ ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B का आधा होगा, ठीक है। A Yes. क्रॉस B होगा पैरेललोग्राम का, तो A क्रॉस B का आधा होगा। तो अगर हमने दूसरा वेक्टर है वो अगर मान लो मैंने C वेक्टर लिया है, तो C क्रॉस A करेगा तो भी A ट्रायंगल का एरिया ही मिलेगा ना, मतलब हाफ ऑफ A ट्रायंगल का एरिया ही मिलेगा ना। Okay. समझ रहे ना बात? हाँ हाँ हाँ। तो वी कैन से दैट अगर आपने A क्रॉस B कर दो या B क्रॉस C कर दो या कोई भी इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ये सबका मैग्नीट्यूड ये ट्रायंगल का एरिया का आधा, सॉरी या ट्रायंगल का एरिया का 2 टाइम्स रहेगा। हाँ। ओके, तो वी कैन राइट ये सबका मैग्नीट्यूड तो सेम है। A क्रॉस B का Okay. मैग्नीट्यूड, B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड और C क्रॉस A का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट? अभी आप उसका डायरेक्शन देखना है, तब पहले देखो ये जो A क्रॉस B का डायरेक्शन है, मतलब A और B को अगर मैंने रिप्रेजेंटेशन करेगा ओनली और AB को, तो ये हो गया A वेक्टर, ये हो गया B वेक्टर। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन कैसे रहेगा? राइट हैंड थंब रूल से परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड आउटवर्ड रहेगा ना। हाँ। A क्रॉस B कर रहा है राइट हैंड थंब रूल से, तो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन और दिस सरफेस एंड आउटवर्ड रहेगा। सेम एज लाइक दैट अगर आप B क्रॉस C कर रहा है तो ये B का डायरेक्शन है, ये C का डायरेक्शन। हमेशा दोनों का जो टेल है वो एक साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ये B का डायरेक्शन है और ये C का डायरेक्शन, तो इसके बीच में भी एंगल, इसका भी ए B क्रॉस C करेगा तो भी आपको डायरेक्शन परपेंडिकुलर दिस प्लेन और आउटवर्ड मिलेगा। Hello, who is this? तो सेम एज लाइक दैट Hello, हमने अगर काय बोला daddy? बेटा नाही लागला ते सर्वेश, मी साइड चेक केली ते दिलंय 10th रिझल्ट विल बी आफ्टर इन आफ्टर. हेलो सर। हेलो सर। Hey,
Sir, तो ये सब या बोलो. sir, but if we do A cross B, then also we'll get a perpendicular to the plane and outwards, right? Yes, yes. तो आप A क्रॉस B कर दो, B क्रॉस C कर दो और C क्रॉस A कर दो. सबका डायरेक्शन परपेंडिकुलर द प्लेन और आउटवर्ड रहेगा. तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, डायरेक्शन भी सेम हो गया. सो वी कैन से दैट A क्रॉस B का वैल्यू और B क्रॉस C का वैल्यू और C क्रॉस A का वैल्यू सेम रहेगा. Okay. समझ गए नहीं? और बोलो. Sir, 29. Position vector of a particle is given by r is equal to a cos omega t plus a sin omega t. Which of the following is true? Velocity vector is parallel to position vector. Velocity vector is perpendicular to position vector. तो एक्चुअली क्या पोजीशन वेक्टर दिया है, उसमें से हम लोग को वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड आउट करना है. फिर देखना है वेदर दे आर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है. ओके. सो आप देख सकते हैं जो पोजीशन वेक्टर है उसका वैल्यू दिया है r वेक्टर इज इक्वल टू a cos ओमेगा t i कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप. अभी आपको वेलोसिटी वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, dr डिवाइडेड बाय dt करना पड़ेगा. तो जस्ट डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी कैन राइट a इज अ कांस्टेंट, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, माइनस साइन एक्स. माइनस साइन. तो ये हो गया माइनस साइन साइन ओमेगा टी. उसके बाद x का वैल्यू हमने ओमेगा टी लिया है, कौन सा टर्म को x लिया है उसको डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करना है. तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई किया प्लस फिर से सेम चीज रिपीट कर रहा है a इंटू साइन ओमेगा टी. साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है. हाँ, तो ये हो गया cos ओमेगा टी. फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेगा तो ओमेगा टी मिलेगा या तो इनटू ओमेगा टी. तो दिस इज j कैप एंड दिस इज i कैप. तो हमको वेलोसिटी वेक्टर का वैल्यू मिला है दैट इज माइनस ऑफ a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस a ओमेगा cos ओमेगा t along j कैप. दिस इज along i कैप. अभी देखना है ये जो पोजीशन वेक्टर है एंड वेलोसिटी वेक्टर आर पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है. अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 मिलेगा. अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके ओमेगा नहीं किया आपने. अच्छा हाँ किया, सॉरी सर. तो a r और v का डॉट प्रोडक्ट करके देखो तो क्या मिलेगा, a ओमेगा a स्क्वायर ओमेगा cos ओमेगा t sin ओमेगा t माइनस माइनस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t cos ओमेगा t प्लस a स्क्वायर ओमेगा sin ओमेगा t cos ओमेगा t. तो 0 मिलेगा. उसका डॉट प्रोडक्ट करे तो so we can say that a vector, so we can say that this r vector and v vector are perpendicular. तो velocity vector is perpendicular to position vector. अभी हम देख सकते हैं ये जो acceleration vector है और उसका वैल्यू क्या है. acceleration क्या होगा, rate of change of velocity होगा. तो इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा. तो माइनस ऑफ a ओमेगा इज अ कांस्टेंट. फिर से sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, प्लस cos ओमेगा t मिलेगा इनटू ओमेगा t का डिफरेंशिएशन हो गया ओमेगा, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t. देन cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin ओमेगा t. तो माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर इनटू sin ओमेगा t along j cap and this is along i cap. अभी आप देख सकते हैं ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है और उसमें क्या दिया, एक्सेलरेशन वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, एक्सेलरेशन वेक्टर इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन. अभी आप देखो एक्सेलरेशन वेक्टर नो एक्सेलरेशन वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर पैरेलल है. एक्सेलरेशन वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर पैरेलल है बिकॉज अब देखो उसको दोनों को डिवाइड करके देखो -1 -1 में आएगा.
when two vectors are parallel, x1 by x2 will be equal to y1 by y2. तो ये cos omega t divided by e minus of a omega square Yes, cos sir, omega yes, sir. t. समझा? तो minus omega square पे आएगा. तो we can say that r vector and a vector are parallel. अभी इसका डायरेक्शन देखो, towards the origin है कि away from the origin है. तो ये जो वेक्टर था उसका डायरेक्शन रहेगा माइनस x एक्सिस पे एंड माइनस j एक्सिस पे. तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर आपको ये वेक्टर मिलेगा ना. तो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन. समझा? अगर प्लस आई Yes, प्लस sir. j देके ये हमारा ओरिजिन है. Yes, sir. Got. अगर आप प्लस आई प्लस j करेगा तो इट इज रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा आएगा ना. Yes, yes, sir. अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर हमने माइनस आई माइनस जे पे कर रहा है तो ये हो गया माइनस जे माइनस आई. तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा आएगा ना, टुवर्ड्स ऑरिजिन आएगा ना. Yes, okay. तो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन वेक्टर इज टुवर्ड्स द ऑरिजिन. और बोलो. Sir, 2 minutes, sir. Yeah. तो सर इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें एक तो बी आएगा और एक्सेलरेशन वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑरिजिन, मतलब बी और सी आएगा. मतलब दो ऑप्शन है, मल्टीपल बस. हाँ, मल्टीपल वाला. Sir, 31 question. It is given that force acting on a particle is 2i cap plus 3j cap. Work done by this force is 0 when the particle is moved on the line 3y plus kx plus 5. The value of k is. तो वर्क डन का वैल्यू क्या रहता है? वर्क डन होता है f dot t. Yes. Over here it is given that work done by the force is 0. Work done by the force 0 कब होता है? When force vector and displacement vector are perpendicular. Perpendicular to each other. Yes. तभी ये जो लाइन है, लाइन के लिए इक्वेशन दिया है 3y plus kx is equal to nothing but 5. Okay? तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ये लाइन को वेक्टर में कैसे लिख सकता है? तो बेसिक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो पता होगा, y is equal to mx plus c करके. तो इसको अगर हम लिख सकते हैं 3y is equal to 5 minus kx और y is equal to 5 divided by 3 minus k divided by 3x. समझा? Yes, sir. तो y is equal to mx plus c में मतलब इसको आप लिख सकता है y is equal to minus k by x k by 3x plus 5 by 3. तो ये क्या हो गया? y is equal to mx plus c का फॉर्म में हो गया. तो y is equal to mx plus c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. एंड ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप आप देखो नेगेटिव मिल रहा है. स्लोप नेगेटिव है एंड ये जो c रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट. तो y इंटरसेप्ट प्लस 5 by 3 पे है और इसका स्लोप का वैल्यू नेगेटिव है. तो वो स्लोप का वैल्यू है माइनस k by 3. तो आपका जो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसा जाएगा. ये समझ में आया? ये जो y इंटरसेप्ट का वैल्यू है 5 divided by 3 एंड स्लोप नेगेटिव है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग लाइक माइनस k by 3 का स्लोप है ओवर हियर. ये समझ में आया कि नहीं आया? आया सर.
या कैन यू एक्सप्लेन अगेन, मतलब समझा नहीं मेरे को ये। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y is equal to mx plus c, okay, where m is known as nothing but a slope of a graph. अगर ये m का वैल्यू पॉजिटिव दिया है तो ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये थीटा 90 से कम होना चाहिए। एंड ये जो c रिप्रेजेंट करता है ये कौन सा पॉइंट में y एक्सिस में टच करता है, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। समझा? हाँ सर। तो अगर मैंने लिखा है y is equal to x plus 5, तो इसका मतलब है इसका जो तो स्लोप 5 पे एंगल का इंटरसेप्ट वैल्यू हो करेगा, गया हाँ। 45 डिग्री एंड y हम्म, इंटरसेप्ट का वैल्यू 5 है, तो हमारा जो ग्राफ है वो ऐसा रहेगा। गॉट इट? ये y पे हम्म, टच करेगा 5 पे एंड इसका जो स्लोप का वैल्यू है वो 90 से कम है हाँ। एंड वो स्लोप का tan थीटा का वैल्यू 1 है, मतलब ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ऐसा आपको पता चलेगा। तो tan थीटा, अच्छा हाँ वो 1 आएगा, 1x। m का वैल्यू mx plus c का, ऐसा। ओके, हम्म, तो ओवर हियर हमने इक्वेशन लिख के देखा है, तो इक्वेशन क्या मिला है, y is equal to minus k divided by 3, तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना, मतलब स्लोप नेगेटिव है, यस सर। तो थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा होना चाहिए स्लोप एंगल। एंड y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है, 5/3 है, तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसा रहेगा। गॉट इट? अभी दिस इज नथिंग बट आवर वेक्टर, तो ये वेक्टर हमने कंसीडर कर रहा है। गॉट इट? तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से इसको वेक्टर का इक्वेशन में आप कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेगा वो देखो। जो ओवर हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर लिख सकता है ना? हाँ सर। And this vector Yes. is having a magnitude of 5/3 along j cap. So I can write this vector as 5 divided by 3 j cap. यस सर। And slope क्या होता है, dy divided by dx होता है या y by x होता है। तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं x का वैल्यू क्या है। ओके, so the value of y divided by x is equal to nothing but k divided by 3. तो y का वैल्यू कितना था, 5 डिवाइडेड बाई 3 और x बाई x इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई k 3। तो ये x का वैल्यू क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाई k आएगा। ये समझ में क्या लिखा है? हाँ सर। तो वी कैन राइट ये जो x का वैल्यू है वो क्या हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 5 k हो अपॉन गया। k आ गया। हाँ, फिर तो दोनों ये को वेक्टर फॉर्म में लिख सकता है 5/k i कैप। तो पूरा मिला के हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन को आप लिख सकता है 5 डिवाइडेड बाई 3 5 डिवाइडेड बाई k along i कैप माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 along j कैप। ये समझ में आया? हाँ सर। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारा जो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है। फोर्स वेक्टर क्या था, 2i कैप प्लस 3j कैप था। ओके, 2i cap plus 3j cap and these two are perpendicular, that's why work done का वैल्यू हमको Dot- 0 मिल रहा है। अच्छा हाँ। या तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 होना चाहिए। हाँ सर। तो 5/k डॉट 10 मतलब 10 डिवाइडेड बाई k माइनस इसका वैल्यू क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 9 should be equal to 0. That means 10 divided by k should be equal to 5 divided by 5 9. upon 9। Or you can write the value of k should be equal to nothing but 18. तो k का वैल्यू 18 होना चाहिए। सर मेरे को बस वो नहीं समझा कि सर आपने वो ये क्यों लिखा है, मतलब y upon x is equals to k upon 3। y upon मतलब k upon 3 कैसे आया dx dy dx में? dy upon dx is equals to y slope so y मतलब is k equal to upon mx 3 plus c है ना? represents the slope। Yeah, k upon 3 represents the value of slope. Okay। सर Got it. बोलो बेटा। सर वो 5/9 में सिर्फ 5 आएगा। 5 a is equal to 8 आएगा। क्या बोला, समझा सर नहीं। उधर 5 सर 5/9 नहीं आएगा, सिर्फ 5 आएगा। 5/3 into 3 करेंगे तो 3 कट हो जाएगा।
3 3 कट हो गया तो k का वैल्यू वो आएगा। x का वैल्यू 5 बाई नहीं सर, वो लास्ट स्टेप में जब आपने डॉट प्रोडक्ट किया उधर बोल रहा था। हाँ सर वहाँ पे बस 5 आएगा, आपने 5/9 लिखा है। ओके ओके सॉरी या 5 आएगा, इस 3 का कैंसिल हो जाएगा तो वी कैन राइट k का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा राइट या इसका कर दे तो 10 डिवाइडेड बाय k माइनस ये 3 1/3 नहीं 3 था तो दोनों कैंसिल हो गया -5 इज इक्वल टू 0 तो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ 10 बाय k इज इक्वल टू 5 और k is equal to nothing but 2 yeah सर बोलो सर आपने जो लाइन ड्रॉ की एक्स वाई प्लेन में, तो उसका डायरेक्शन नीचे क्यों लिया, ऊपर क्यों नहीं लिया? ऊपर भी ले सकता है, हमको पता नहीं वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। वो ऊपर जाएगा तो भी परपेंडिकुलर आएगा ना, नीचे जाएगा तो भी परपेंडिकुलर आएगा ना। हाँ सर, पर अगर वो ऊपर गया तो जे उसका पॉजिटिव हो जाएगा ना, जे कैप। नहीं हाँ जे कैप पॉजिटिव हो जाएगा बट रिजल्ट तो एक्स कैप नेगेटिव हो जाएगा। हाँ तो रिजल्टेंट मतलब अगर मान लो आपका जो फोर्स वेक्टर है वो ऐसा है, तो अगर लाइन ऐसा जाएगा तो भी 90 डिग्री रहेगा, ऐसा रहेगा तो भी 90 डिग्री रहेगा ना, तो कुछ इश्यूज नहीं है। हाँ सर, तो नीचे की तरफ भी जा सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, बट इन बोथ द सिचुएशन इट इज गोइंग टू मेक एन एंगल 90 डिग्री। तो ए डॉट बी का वैल्यू हमको मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट हमको 0 ही मिलेगा। और बोलो 33 को 33 yeah. The vector a plus 2b is perpendicular to 7a minus 5b and 4a minus 4b is perpendicular to this. The angle between a and b is. So this vector is perpendicular to this and this is perpendicular to this. That means का dot product का value क्या 0 होना चाहिए, right? So I think इसका आंसर कुछ और आता है, एग्जैक्टली 40-35 में नहीं आता है शायद, ऐसा कुछ इश्यू था, देखते हैं। तो a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर is perpendicular to 7a वेक्टर minus 5b वेक्टर and this is perpendicular to this, मतलब इसका दोनों परपेंडिकुलर है, प्लस का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। So we can a वेक्टर डॉट 7a वेक्टर, उसका आंसर क्या आएगा 7a स्क्वायर आएगा, समझा? यस सर And, पर अपन तो अगर आई बोलो। कैप प्लस जे कैप बोलो, कुछ हो तो अपन आई कैप थोड़ी लिखते हैं सर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते, 7 into 1 सिर्फ 7 आएगा ना सर? नहीं वो आई कैप नहीं है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है। ओके, ए इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, उसमें जो आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू 1 इसलिए लिखता है कि वो 1 into cos 0 था, इधर a into cos 0 है, तो a into क्या होगा, a into a क्या आएगा, a स्क्वायर होगा ना। ओके सर, समझ बात? अगर a यूनिट वेक्टर दिया तो आप लिख सकता है, a यूनिट वेक्टर नहीं है रहता तो उससे मल्टीप्लाई होता ना। ऑर्डर। तो a डॉट तो इसका वैल्यू क्या होगा 7a स्क्वायर हो गया। अभी आप a वेक्टर डॉट -5b वेक्टर देखते हैं तो क्या आएगा -5 into a डॉट b क्या होगा ab cos थीटा रहेगा। नाउ आप a दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, दैट इज +21 ab cos थीटा मिलेगा। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा -15 b स्क्वायर मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 0। गॉट इट? So we can write this will be equal to 7a square and इसका वैल्यू हो जाएगा that is 17, that is 16
Thus we can take it as plus 16 AB cos theta minus 15 B square is equal to nothing but 0. Equation number 1. ऐसा हम लोग सेकेंड केस में भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा. सेकेंड केस में क्या दिया है? It is given that A vector minus 4B vector is perpendicular to 7A vector minus 2B vector. तो फिर से हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट करेगा. तो देखो क्या मिलेगा आंसर. A vector dot 7A vector, we are going to get it as nothing but 7A square, and this vector dot this vector कर रहा है तो minus 2AB cos theta. फिर हमने A दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा है तो we'll get us 20 minus 28 AB minus 28 AB cos theta and minus ये दोनों का कर रहा है तो you should get the answer as nothing but we'll get the answer as 8 plus हो गया minus just 8B square हो गया, and this should also be equal to 0. That means we can take it as 7A square minus इसका वैल्यू क्या आएगा 30AB cos theta plus 8B square should be equal to 0. अभी हम लोग ये दोनों को इक्वेट कर सकता है. तो इक्वेट करके वो cos theta का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो एक्चुअली मतलब ऐसा क्वेश्चन में क्या आता है कि ये a स्क्वायर और b स्क्वायर का टर्म कैंसिल होना चाहिए ताकि हमको एग्जैक्ट मतलब आंसर मिलता है. ये टर्म एक्चुअली वो कैंसिल नहीं हो रहा है ताकि हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएगा. मतलब a स्क्वायर प्लस 16AB cos theta minus 15B square is equal to, we can write 7 is बोलो बेटा. उसका 2A cos theta is equal to B आ रहा सर. 2A cos theta is equal to B. 2A cos theta is equal to B ऐसा आ रहा है. Yes. या तो cos theta का वैल्यू क्या रहेगा? B divided by 2A रहेगा. Yes. तो जो आंसर ये को 60 डिग्री कुछ दिया है उसके लिए क्या इसका आंसर 1/2 होना चाहिए. मतलब A और B का मैग्नीट्यूड क्या 1 होना चाहिए. तो ये वेक्टर और B वेक्टर यूनिट वेक्टर है तभी वो चलता है, बट ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है. समझा? ओके सर. So if vector and A vector and B vector are unit vectors तो आप बोल सकते हैं. अदरवाइज हम लोग इधर तक लिख सकते हैं cos theta is equal to B divided by AB तक लिख सकते हैं. Sir, 26. अब इसको आगे सॉल्व करो. विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. ओके, दूसरे क्लास 11 o'clock में है इसलिए अभी रोक रहा हूँ. विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.